क्योंकि पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है। अब मार्क्स तो चाहिए, पढ़ाई तो करनी है नहीं, आपको वेब सीरीज भी देखनी है, फिर क्या ही होना है आपका लाइफ में। Welcome to Study Holic. Today we are gonna discuss chapter 3, that is self. अब self मतलब क्या होता है? Self is the basic core of psychology. That is the reason जिसके लिए हम psychology पढ़ते हैं, to understand human behavior and human mind. So if I start to ask you question like आप कौन हो या आप क्या करते हो, various people would have different kinds of answers. Like I'm a teacher, I'm a doctor, that is profession wise, or I'm a nice person, character wise, or like I'm a human, or I am the leader of my class, or I am the politician. So different people will have different answers to the same type of question. That is how they look at themselves, that determines the answer of this particular question. This is known as self concept in psychology. It includes your thoughts, your feelings, your behavioral patterns, your emotional makeup, and so on. Now, there were two scientists in 1994 naming Rentz and Hempfler. They asked 20 questions to 200 different university students, and they came to a conclusion that कि अलग अलग लोग, अलग अलग जगह से आए हुए लोग एक ही क्वेश्चन का आंसर मिनिमम अराउंड 8 कैटेगरीज में देते हैं। दैट इज़ इंटरपर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स पे, या पर्सनल बिलीव्स पे, या सेल्फ अवेयरनेस पे। ऐसे अलग अलग पर्सपेक्टिव में उन 200 लोगों ने 20 क्वेश्चंस आंसर किए थे। नाउ व्हेन वी थिंक ऑफ द एग्ज़ाम, हाउ वी आर सपोज टू define self concept. At any cost, you are not supposed to, what I can say, skip this definition. That is, self concept is defined as the totality of perceptions each person has for themselves. इसका एक भी वर्ड ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, वरना मार्क्स कटते हैं, मेरे भी कटे थे। So keep that in mind. And if that is like 3 markers or 4 markers, you can add the paragraph like self concept is total image of ourselves, our abilities and traits, and blah and blah, you can add on according to mark. So उसको मोटा चौड़ा करके लिख के आना है। इसके बाद का कंसेप्ट है नेक्स्ट स्लाइड, या सेल्फ एंड लाइफ साइकिल। अब सेल्फ एंड लाइफ साइकिल में हम देखते हैं कि एज ह्यूमन बीइंग ग्रोज, वो कैसे कैसे लाइफ के साथ एक्वेंटेस होता है। ओके, लाइफ के साथ, हाउ आई कैन से, you start to know how the world works outside you, and this is also a part of developmental psychology. If you remember, we have seen developmental psychology in chapter 2, branches of psychology. Okay, so when a baby is born, till the age of 6 months, he or she is not aware of themselves. फिर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, एक एक 1.5 साल के होते हैं, दे ट्राई टू, व्हाट आई कैन से, see themselves in mirror. They are very surprised to see themselves in mirror, because you know that new वाला feeling कि हमारे जैसा ही कोई सामने भी है. So at times it scares them, but after some time वो उसके साथ adjust हो जाते हैं. और ये किसने, मिरर वाली थ्योरी किसने बताई थी? दैट इज़ लेविस एंड रामसे। फिर उसके बाद एट द एज ऑफ 2 उनके सेल्फ इस्टीम जो है वो स्टार्ट होने लगती है। फिर दे स्टार्ट डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, और दैट इज़ नोन एज द स्टार्टिंग ऑफ सेल्फ इस्टीम। उसके बाद व्हेन दे टर्न लाइक 3 or 4 years, यू नो दे स्टार्ट गोइंग टू प्ले ग्रुप एंड ऑल। फिर वो लोगों के साथ मिक्सअप करना स्टार्ट करते हैं, अपने टैलेंट्स को, अपने स्किल को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। एंड जैसे जैसे बड़े होते हैं, लाइक 7, 8, 9, 10, कंपैरिजन, झूठ बोलना चालू कर देते हैं बच्चे। एंड द व्हाट आई कैन से, the period in which they start actually lying
is in psychology it is known as private self concept। लाइक उनके जो इमेजिनेशंस है, उनके जो ड्रीम्स है, वो खुद लाइक खुद तक ही रखना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू शेयर इट विद देयर पेरेंट्स or anyone else। They start watching films and movies and imaginary friend in the world of imagination, what I can tell you। So इसके बाद आती है द एज ऑफ adolescence, like teen age, 14 15 16। yeah, you are at the end of that। so इस एज में सेल्फ कंसेप्ट का जो ड्यूरेशन होता है दैट इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव टेकिंग। यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि आगे वाला इंसान क्या बताना चाह रहा है। ओके, पहले रहता है कि मैं जो बोलूँ वही करेक्ट है। आप 13 14 15 के बाद लोगों को अंडरस्टैंड करना चालू कर देते हो। लाइक यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग व्हाट्स लाइक बीइंग देम इन देयर बूट्स, सो समथिंग लाइक दैट। फिर उसके बाद आती है ऑब्जेक्टिव सेल्फ अवेयरनेस। ऑब्जेक्टिव सेल्फ अवेयरनेस इन द सेंस आपको बहुत लाइक व्हाट आई कैन से पॉपुलर बनना बहुत पसंद होता है। आपको अटेंशन ग्रैब करना बहुत पसंद होता है। you like to be like your friends, you like to dress properly or something like that। you become very self aware of yourself only objectively। आपको अंदर से इम्प्रूवमेंट की कोई तलब नहीं होती, आपको बस बाहर से चमक धमक दिखना चाहिए। आप जब भी कॉलेज में जाओ आपको ऐसे बड़ा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स चाहिए जो काम के कुछ नहीं होते, बस नाम के होते हैं। ओके, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव सेल्फ अवेयरनेस। इसके बाद आता है जेंडर आइडेंटिटी एंड जेंडर रोल। अब जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर रोल क्या होता है, दे इवेंचुअली गेट मिक्सड अप, ठीक है, बट ऐसा ड्यूअल कॉन्सेप्ट में है नहीं। जेंडर आइडेंटिटी जो है दैट इज़ बायोलॉजिकल वन, और जेंडर रोल जो है दैट इज़ एक्वायर्ड वन। जेंडर आइडेंटिटी आपके सेक्सुअल ओरिएंटेशन पर डिपेंड होता है कि आप अगर एक्स और एक्स हो देन यू बिकेम अ फीमेल। अगर एक्स की जगह पे एक वाई आ जाए देन व्हाट आर यू, यू आर अ मेल। सो दिस इज द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ योर एग्जिस्टेंस, वेयर अ जेंडर रोल इज क्वाइट साइकोसोशल इन नेचर। अब ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ फैमिली यू हैव। It depends in which kind of environment you have grown up। उनकी थिंकिंग क्या है, उनके परसेप्शंस क्या है। कुछ काम ऐसे होते हैं लाइक कुकिंग इज कंसिडर्ड टू बी दैट समथिंग दैट ओनली women are supposed to do, but look at Sanjeev Kapoor, he is doing pretty fine while cooking। Look at Miss Fogart, like she does wrestling and all, that is quite attributed to masculine factors। Okay, so these are the examples, but in 21st century the great thing about living in 21st century is that people are quite open minded now to things। ठीक है, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा दैट जेंडर रोल मिक्स होने के बाद भी सोसाइटी इज काइंड ऑफ एक्सेप्टिंग इट। बॉयज आर अलाउड टू कुक, to knit, to learn stitching, even tailors are some males, man। So we need to grow up। So that was the majority of part of gender identity and gender role। Next we are going to see aspects of self। Majorly there are 4 aspects of self, that is self awareness, self image, self efficacy, self esteem। I want you to have a great understanding of things here because you end up confusing everything because everything is starting with self। ठीक है, सब सेल्फ से स्टार्ट हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि सब सेम है। सब कहीं ना कहीं जाके एक व्हाट आई कैन से करस्पॉन्डेंस ज़रूर दिखाता है, लेकिन दैट इज़ नॉट वन एंड द सेम थिंग। I don't want you to mess everything up in the exam। Okay, so listen very carefully। सेल्फ अवेयरनेस होता है दैट इज इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सेल्फ कंसेप्ट। अब ये क्या है, दैट इज़ अ क्वालिटी ऑफ ट्रेट कि आप अपने बारे में कितने कॉन्शियसली अवेयर हो, कि आपको पता है कि आपके थॉट्स क्या है, आप कैसे सिचुएशन में क्या फीलिंग्स रखते हो,
आपका बिहेवियर क्या है, आपके ट्रेड्स क्या है, आपके प्लस पॉइंट क्या है, आपके माइनस पॉइंट क्या है. You need to be pretty well aware of all these things. So that is self awareness. Okay, अब self image. Self image is more or less the view of how you see yourself. कि आपको आप अगर किसी मिरर में देखो तो आपको क्या फीलिंग आती है. डू यू फील लाइक यू आर अ गुड पर्सन, डू यू फील लाइक यू आर अ बैड पर्सन, डू यू फील लाइक यू आर फैट, और डू यू फील लाइक यू आर स्लिम. योर मेंटल कंसेप्ट कि आपको लगता है कि आप एक इंटेलिजेंट बीइंग हो या आप एक वीक स्टूडेंट हो. सो दैट इज़ मोर अबाउट सेल्फ इमेज. एंड सेल्फ इमेज इज़ डायनामिक. जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल है वो परसों नहीं होगा. So it is dynamic and continuously changing. And self-image is like a sword. अब मैंने इसको sword क्यों बोला, क्योंकि ये बेनिफिट भी कर सकता है आपको इन अ हेल्दी वे, और ये आपकी मेंटल हेल्थ डिटोरेट भी कर सकता है. इफ़ यू हैव अ हेल्दी सेल्फ इमेज कि मैं अभी ये हूँ और आई नीड टू इम्प्रूव, आई एक्सेप्ट वॉट आई एम, आई लव माई सेल्फ एज वॉट आई एम, तो दैट इज़ अ हेल्दी सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ इमेज. एंड इफ़ यू आर ऑन द अदर साइड कि मैं मोटा ही हूँ, मेरे को सब निगलेक्ट ही करते हैं, दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू बी, आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी अ पुश ओवर. नहीं ना, दैट इज़ कॉल्ड अ बैड सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ इमेज. ओके, अब बॉडी इमेज इज़ अ ग्रेट पार्ट ऑफ सेल्फ इमेज बिकॉज वो आपको सामने से दिखता है. एंड टिल द एज ऑफ 25 people are very conscious about their body. I also believe that a body in a particular shape looks good. Okay, I am saying it looks good, but it is not 100% necessary कि आपको survive करने के लिए वही body चाहिए. If you have that kind of body, you will be healthy. Now I am talking about a healthy body, not a body with too many shreds and all. Yeah, if you are a girl with very thin legs and all. ठीक है, आपको एक बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए. आपकी बॉडी में थोड़े बहुत फैट्स होने चाहिए सो दैट आपका कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है वहाँ तक वो शॉक नहीं पहुँचना चाहिए. ओके, दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ बॉडी फैट. इफ़ यू डेंट नो, वो मिनिमम क्वांटिटी का फैट आपकी बॉडी में होना ही चाहिए. इट्स नॉट लाइक थिन 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 बोल के आप एक काटी बन गए हो. लाइक फ्रॉम अप टू डाउन यू आर जस्ट लाइक सम स्टिक और ब्रांचेस ऑफ ट्री. वैसे नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो एक पॉजिटिव बॉडी इमेज कॉन्ट्रीब्यूट्स टू एनहांस योर फिजिकल और साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट, और ऑन द अदर हैंड नेगेटिव वन कैन गिव यू रियल बैड डिप्रेशन. ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सेल्फ एफिकेसी. सेल्फ एफिकेसी इज समथिंग दैट आपके बिलीव क्या है, आप अपने लाइफ में जो गोल्स सेट करते हो आप वो किस हद तक फॉलो कर रहे हो. या आपने बहुत लंबे चौड़े गोल रख दिए कि भैया 1 महीने में हमको करोड़पति बन जाना है, तो ऐसे तो ये क्या ही होना है. ठीक है, सो दैट इज़ सेल्फ एफिकेसी कि आप रियलिस्टिक गोल्स रख रहे हो एंड यू कीप स्मॉल स्मॉल गोल्स, यू डिसाइड हाउ यू आर गोइंग टू अचीव देम, और आप धीरे 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 करते हो. Like for example, I opened this YouTube channel like 2-3 years ago, और मैंने बोला कि हाँ अब 1 million सब्सक्राइबर्स लेके ही रहेंगे. दैट वॉज वेरी अनरियलिस्टिक. और मैंने 5-6 वीडियो डाली पिछले 3 साल में, एंड देन आई गेव अप ऑन यूट्यूब क्योंकि मेरे को व्यूज़ नहीं मिल रहे थे. सो आपको सीरियसली ऐसा लगता है कि जो भी फेमस होता है वो एक दिन या 4-5 वीडियो डालने से कुछ तो बनता है लाइफ में? नो, यू नीड टू पुट अ कंसिस्टेंट एफर्ट. सो आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, आप 1 दिन में 1 वीडियो बनाओगे. अगर आपका शेड्यूल टाइट है आप 2 दिन में 1 वीडियो बनाओगे या 1 वीक में 1 वीडियो बनाओगे. यू विल हैव टू सेट सर्टन काइंड ऑफ डिसिप्लिन ऑन योर सेल्फ एंड बी कंसिस्टेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रिजल्ट्स. ठीक है, अगर आपके एग्ज़ाम में कम मार्क्स आ रहे हैं, यू नीड टू फाइंड कि कहाँ पे गड़बड़ है. भाई मेरे को थ्योरी समझ में नहीं आ रही है या मेरे को उसको अप्लाई करना नहीं आ रहा है. ऐसे ऐसे आप
खुद के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालना चालू करोगे, आपके साइकोलॉजी में भी अच्छे नंबर आने लगेंगे और आप लाइफ के एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छे नंबर से पास नहीं कर जाओगे, आप इसमें आओगे, व्हाट इज डिस्टिंक्शन में आओगे 60+, ठीक है। सो ट्राई टू अप्लाई साइकोलॉजी इन योर लाइफ एंड यू विल बी वेरी बेटर। नेक्स्ट इज सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम इज मोर लाइक टू डू लिस्ट और चेकआउट लिस्ट, कि बाबा हाँ मेरे को लगता था मैं ये हूँ, वो हूँ, वो हूँ, वो हूँ, वो हूँ, अब मैं एक्चुअली में हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। दिस इज द मोस्ट क्या बोलते हैं बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेल्फ एस्टीम। इट इज़ अ जनरल इवोल्यूशन ऑफ इंडिविजुअल अलॉन्ग वेरियस डायमेंशन, ठीक है। मेरे को इंटेलिजेंस है, ओके, मेरे को गुड लुक्स है, ओके। अब गुड लुक्स क्या है, यू नीड टू हैव अ रियलिस्टिक सेल्फ एफिकेसी ऑफ दैट, ठीक है। सो दिस थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड बट नॉट completely सेम. I warn you once again, don't mix them. Next we are going to see self-regulation. Now this is not a component of self concept. Keep this in mind. This is like a whole new thing. So self-regulation is more about how you have self-control. कि for example मैं खुद के दे देती हूँ YouTube, हाँ, जिस पे मैं वीडियो बना रही हूँ. आई वॉज अ एडिक्ट ऑफ दिस, लाइक प्रिटी बैड एडिक्ट. दिन का कम से कम 9 घंटे एंड मैक्सिमम 12 घंटे मेरा वॉच टाइम होता था. आई एम रियली टॉकिंग अबाउट दिस. और ये कब की बात है, ये मेरे 10th स्टैंडर्ड की बात है, बोर्ड एग्ज़ाम्स. दैट इज़ आई गेस इट वॉज 2018. अभी 2022 है, आई मीन फर्स्ट ईयर, सो या 2018 तो होगा, नहीं तो 2017 तो होगा, व्हेन आई हैड माई 10th बोर्ड एग्जाम्स. आई स्टडीड इन एन ICSE स्कूल. और पढ़ाई का इतना प्रेशर होने लगता है दैट यू स्टार्ट गेटिंग एडिक्टेड टू वेब सीरीज. तब नेटफ्लिक्स उतना होता था या नहीं होता था मेरे को याद नहीं, लेकिन मेरे को तो पता नहीं था कि नेटफ्लिक्स जैसी कोई चीज़ है. तो इस पे मैंने एक वेब सीरीज़ देखनी चालू करी. उसका एक एपिसोड 3 घंटे का होता था एंड समटाइम्स आई यूज टू एंड अप वॉचिंग लाइक 4 एपिसोड्स इन अ डे. 3 घंटे के 4 एपिसोड कितने घंटे हो गए, 12. समझ में आ रही है बात. सो दैट वॉज लेवल ऑफ माई एडिक्शन. उस दिन मेरे को पता चला कि देख तेरे में टैलेंट तो है, तू एक थिंग यू कैन, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डू इट फॉर 12 आवर्स अ डे. फिर पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है. एंड दैट वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन आई फेल्ड फॉर फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ. दैट वॉज 10th प्री बोर्ड. मेरा केमिस्ट्री उड़ गया, लाइक सच्ची उड़ गया. एंड सर वॉज वेरी एंग्री विथ मी बिकॉज आई वॉज द मॉनिटर ऑफ द क्लास. एंड मॉनिटर्स आर एटलीस्ट नॉट एक्सपेक्टेड टू फेल इन एन एग्जाम. सो आई वॉज वॉचिंग यूट्यूब फॉर 12 आवर्स. मैंने खुद को बोला कि भाई तेरे में है कि यू कैन डू अ सर्टन थिंग फॉर लॉन्ग टाइम, यू हैव अ गुड ब्रेन, बट वाई आर यू नॉट यूजिंग इट. क्योंकि पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है. अब मार्क्स तो चाहिए, पढ़ाई तो करनी है नहीं, आपको वेब सीरीज भी देखनी है, फिर क्या ही होना है आपका लाइफ में. सो आई स्टार्टेड डिसिप्लिनिंग माई सेल्फ कि जब भी मेरे को अंदर से आएगा कि यूट्यूब देखना है, वॉट आर यू सपोज टू डू. ठीक है, तेरे को यूट्यूब देखना है, यू स्टडी फॉर 30 मिनट्स, यू वॉच 30 मिनट्स ऑफ यूट्यूब. यू स्टडी फॉर 30 मिनट्स, यू वॉच 30 मिनट्स ऑफ यूट्यूब. ऐसे करके मेरी पढ़ाई जो नील थी, दैट इज़ कम्प्लीटली नील, मैंने 6:6 पे लाके छोड़ दी. ओके, दिस इज़ अ ग्रेट थिंग. मेरे को पता है कि 6 आवर्स ऑफ यूट्यूब इज स्टिल अ ग्रेट थिंग टू रिड्यूस. एंड 6 आवर्स ऑफ पढ़ाई अकॉर्डिंग टू 10th और जैसे आपके बोर्ड एग्जाम पास आ रहे हैं, ये बहुत कम है. लेकिन कुछ नहीं से अच्छा क्या होता है, कुछ तो सही. फिर धीरे धीरे आप क्या करो, स्टडी का टाइम 45 मिनट्स करो और यूट्यूब का टाइम 15 मिनट करो. और धीरे धीरे मैंने वैसे करके यूट्यूब को पूरा ख़त्म कर दिया. ओके, धीरे धीरे मतलब मेरे को इसको 1 से 2 साल लगे पूरा एडिक्शन ख़त्म करने में. एंड अब व्हाट आई एम डूइंग, मेरे को जब भी यूट्यूब की तलब होती है, आई स्टार्ट मेकिंग माई ओन वीडियोज़ rather than watching videos. This is self regulation of self control. अगर आपकी भी वैसी कोई हैबिट है, या आई डोंट थिंक many of you drink alcohol,
एंड इवन इफ यू डू, आप ऐसे करके उसको कम 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 करो एंड फाइनली इरेडिकेट इट फ्रॉम योर लाइफ, बिकॉज you have many other things to do in your life. You can't mess up with this many addictions. आपका PUBG हो boys, if you are doing very much PUBG your whole day and you wanna study, try to do this what I did with you too. और गर्ल्स जो हो वो अगर शीशे में देखने की उनको बहुत आदत हो या मेकअप के साथ एक्सप्लोर करने की बहुत आदत हो, ट्राई टू रिड्यूस इट, कि अगर आप इतने इतने घंटे ये काम करोगे तो ही आपको वो करने को मिलेगा, एंड यू आर द ओनली वन हु विल हैव दैट रिमोट ऑफ योर ओन लाइफ. ठीक है, आप अपने अगर आप ओवर थिंकर हो, आई एम अ ग्रेट ओवर थिंकर, ऐसे ऐसे चीज़ें इमेजिन कर रखी है कि वो लाइफ में कभी होनी ही नहीं है, और ओवर थिंकिंग में पूरा दिन ख़त्म हो जाता है, यू डोंट डू एनीथिंग प्रोडक्टिव. सो वैसा ना करो. ठीक है, आपके फीलिंग्स को चेक में रखो. अगर हाँ बहुत होता है इस उम्र में, ब्रेकअप वेकअप हो गया, फिर देवदास हुए पड़े हैं, नेक्स्ट वीक से एग्ज़ाम है, क्या ही कर लोगे. जो गया है वो तो वापस आने वाला है नहीं, आने वाला या आने वाली है नहीं. ठीक है, तो थोड़ा खुद पे ध्यान रख लो. आपके पेरेंट्स ने इतनी मेहनत करके आपको फ़ोन दिलाया है, पीसी दिलाया है, अच्छे स्कूल में डाला है, थोड़ा बहुत उसका इम्पोर्टेंस रख लो. ओके, ट्राई टू सी विच व्हेन यू आर विथ सम पीपल, क्या आपको अच्छा फील करा रहे हैं, क्या वो टॉक्सिक फ्रेंड्स हैं या वो अच्छे फ्रेंड्स हैं. सो वो डिफ्रेंशिएट करना सीख लो. ठीक है, एंड इफ़ यू डू ऑल दिस, सेल्फ कंसेप्ट आपने अपना अच्छा कर दिया, आपने खुद को सेल्फ रेगुलेट कर दिया, तो फिर आप अपने लाइफ के सुपरमैन बन जाओगे. नो वन नीड्स टू कम एंड रेस्क्यू यू. एट टाइम्स यू विल बी एबल इनफ टू रेस्क्यू योर सेल्फ. मैंने ये खुद की लाइफ पे ट्राई किया है. आई होप दैट यू कैन ट्राई इट ऑन योर ओन लाइफ एज वेल. ओके, सो लेट्स गो ऑन टू नेक्स्ट कंसेप्ट. दिस इज कार्ल रॉजर्स थ्योरी ऑफ सेल्फ. अब ये जो भाई साहब हैं मिस्टर रॉजर्स, ये क्या कहते हैं कि हर एक इंडिविजुअल का एक टेंडेंसी होता है कि उनको वो एक्चुअलाइज करना है. यहाँ पे ये दीदी है, सी यहाँ पे उसके टेस्ट लगे हैं, उसको टेस्ट में कंटिन्यूसली एफ शी इज़ फेलिंग, और वो फेसबुक या सोशल मीडिया पे इतनी उसमें घुस चुकी है कि उसको सबको वही दिखाना है, गुड साइड ऑफ हर सेल्फ. और ये जो दिखावट है, ये बनने के लिए उसको सारा टाइम इसमें डालना पड़ता है, जिसके वजह से शी इज़ नॉट एबल टू स्टडी. अब सोशल मीडिया का ये अगली ट्रूथ है कि जो दिखता है वैसा बिल्कुल भी होता नहीं है, लेकिन हम सबको वही चाहिए होता है. rather than spending time on toxic things, why don't you actually work for things that will make your life good? मैंने भी इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया है. ओके, फाइनली. दो मैं बीच बीच में उसको फिर से इंस्टॉल करके फिर अनइंस्टॉल कर देती हूँ, व्हेन यू फील वेरी कॉर्नर्ड एंड ऑल, क्योंकि आपके मैक्सिमम फ्रेंड सोशल मीडिया पे होते हैं. वहाँ पे आप जब देखते हो कि आपकी लाइफ झंड हुई पड़ी है और सबकी लाइफ अच्छी हो रही है, कोई मनाली जा रहा है, कोई शिमला जा रहा है, भाई कोई लिटरली कोई अंटार्कटिका जा रहा है, अंटार्कटिका नो दैट इज़ नॉट प्लेस वेयर यू कैन गो, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, और आप वही सड़ू के सड़ू उसी सिटी में क्या पता कितने सालों से पड़े हो. ठीक है, आपके ग्रेड्स कितने ही कम आ रहे हो, एंड पीपल अपलोड देयर रिजल्ट्स ऑन देयर स्टोरीज व्हेन दे टॉप इन समथिंग. तो आप बहुत डीमोटिवेट होने लगते हो, आप खुद को बहुत घटिया समझने लगते हो, एंड यू एंड अप वेस्टिंग टाइम फीलिंग बैड अबाउट योर सेल्फ रादर देन वर्किंग ऑन योर सेल्फ. ठीक है, खुद पे काम करना चालू करो अगर आपको इतना ही गुस्सा आ रहा है. सो दिस इज़ द ट्रुथ अबाउट सोशल मीडिया. एंड कार्ल रॉजर्स भैया वही कह रहे थे कि आपका एक होता है रियल सेल्फ, ये दीदी, दिस इज़ हर रियल लाइफ एंड दिस इज़ हर व्हाट वी कैन से आइडियल सेल्फ. उसको ऐसा बनना है और वही वो सोशल मीडिया पे पोर्ट्रेट करी है. वो खुद को तो हार्म कर ही रही है, और जो भी ये देखेगा और जो रियलिटी में ऐसा होगा वो क्या बोलेगा, है इसकी लाइफ तो कितनी अच्छी है, मेरी झंड हुई पड़ी है. ओके, दैट इज़ द कार्ल रॉजर्स थ्योरी ऑफ सेल्फ मोटे मोटे में. आप मेरे वीडियो देखने के बाद ना एक बार जाके 29 पेज नंबर पढ़ लेना, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे. मैं वो ये पैराग्राफ भी पढ़ के सुना सकती हूँ,
बट आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा। आई एम ट्राइंग टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट। आप ये देखने के बाद आप एक बार वो चैप्टर रीड कर रहे हो, आपको सब आ जाएगा, ठीक है। दैट इज़ अ गारंटी दैट आई गिव यू। मेक अ प्लान फॉर योर सेल्फ कि आप अपने माइंड को कैसे इम्प्रूव करना चाहते हो, आप आपके बॉडी को कैसे इम्प्रूव करना चाहते हो। एंड आई पर्सनली फील लाइक इफ़ यू एक्सरसाइज, ठीक से सुन लेना मेरी बात, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपके दिमाग में वो डोपामाइन वगैरह वगैरह कुछ तो छूट जाता है। मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, मेरे को ज़्यादा साइंस का पता है नहीं, तो ऐसा कुछ केमिकल छूटने लगते हैं और आपका डिप्रेशन कम होने लगता है। आई पर्सनली एक्सरसाइज ट्वाइस अ डे। आपकी बॉडी भी अच्छी दिखने लगती है, फिर बॉडी अच्छी दिख रही है तो आपको कपड़े भी बहुत अच्छे फिट हो जाते हैं, फिर आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ने लगता है। एंड व्हेन यू एक्सरसाइज, आप यूजुअली सुबह जल्दी उठते हो, ठीक है, 6 बजे हो गया, 7 बजे हो गया, यू गेट अप अर्ली। अब सुबह जल्दी उठोगे तो क्या होगा, 1-1.5 घंटे में आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी, ठीक है, आपका बॉडी ठीक हो जाएगा। लेकिन बाकी का जो पूरा दिन है, यू कैन यूज इट टू डू समथिंग प्रोडक्टिव। आप पढ़ाई कर लो, आपका जो बचा हुआ काम है, आपके असाइनमेंट्स, आप वो सब कर रहे हो, यू गेट अ गुड चंक ऑफ टाइम। और धीरे धीरे आप शाम को भी थोड़ी एक्सरसाइज करना चालू करो। मतलब रात को ऐसी नींद आती है ना जैसे कि हम 10 साल से सोए ही नहीं है, इतनी जल्दी नींद आ जाती है। फिर वो डिप्रेशन, वो सोशल मीडिया देखते देखते 1-2 बजे सोना, वो सब नहीं होता है, ठीक है। अपने माइंड को आपके हिसाब से ट्रिक करना चालू कर दो, एंड डोंट लेट इट गेट ट्रिक्ड बाय सम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और समथिंग। ओके, so that is the way how you get your life together. हो गया खत्म, अच्छा इतना ही था। So that's it guys, thank you, like, share and subscribe, and tell me in the comment section कि आपने अपनी लाइफ में ये कौन से कंसेप्ट जो है वो अप्लाई किए और आपको उन सारे कंसेप्ट से क्या रिजल्ट्स मिला, मेरे को कमेंट करो। एंड आपको कोई इस चीज़ में, सेल्फ रेगुलेशन में अगर हेल्प चाहिए हो, लाइक पर्सनल लाइफ में एंड इवन इन एकेडमिक्स आपको कोई हेल्प चाहिए हो, सो लेट मी नो। दैट्स इट, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे अहेड।